Hello dear students, welcome to my channel Patel Science Academy. Dear students, in this lecture I am going to explain to you about the spinal cord. Dear students, as I have explained in my previous lecture about the brain and the part of the central nervous system, another part of the central nervous system is spinal cord. So dear student, there are two part of the central nervous system. First one is a brain and another one is spinal cord. So dear students, before I explain the characteristics of the spinal cord, let me show you where is spinal cord. So dear students, this is the structure of our brain. You can see here, and our brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So this is the at the lower side, this is the region of the hindbrain, and you can see here there are three parts in the hindbrain. The part you can see here, it's a pons, varoli, medulla oblongata, and at right side cerebellum. So dear student, these are the three parts of the hindbrain, and medulla oblongata, which is the last part of our brain, it continues as a stalk like structure known as spinal cord. So this is spinal cord at lowermost side, and this is the central canal of the spinal cord. You can see here in the red color within this pink color structure. So this is spinal cord, the continuation of the central nervous system with the coordination of the brain. Okay dear students, so what is spinal cord? It is the second important part of the CNS, means central nervous system, and the lower extension of the medulla oblongata. So you can see here medulla oblongata at the left side label, and it is the lower extension of the medulla oblongata, so it is called spinal cord. So dear students, you can see here the spinal cord inside this bones, which is the part of our vertebral column. So within this bone, the spinal cord, it continues with its central canal. You can see here, again you can see in this digital diagram also, the spinal cord with its neural canal continues all over the body. Okay dear student, so without wasting a time, let's have a look on the characteristic feature of the spinal cord. देखते हैं one by one spinal cord के सभी characteristics. Okay dear students, so first characteristic जब सबसे पहले जो है आती है, it lies within the neural canal of the vertebral column. vertebral column के अंदर जो neural canal होता है, वहाँ पर ये आपको दिखेगा. it lies there at the vertebral column, at the neural canal और द सेंट्रल कैनाल ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर जो न्यूरल कैनाल होता है, यानी जो एक वे होता है, एक पाथ वे होता है, एक रास्ता होता है, वहाँ से ये कंटिन्यूस होता है वर्टेब्रल कॉलम में. इसका यही मीनिंग है. ओके, सो इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम यानी जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन में जो न्यूरल कैनाल होता है, न्यूरल कैनाल होता है, उस न्यूरल कैनाल में से होते हुए ये पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड होता है. ओके, इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय द थ्री मेनिंजेस. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ब्रेन के बारे में आपको बताया था, ब्रेन को तीन लेयर ने जो है सराउंड करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है. तो ऐसे ही वही तीन लेयर इसमें भी रहती है, जिसका नाम है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम है ड्यूरा मैटर, सेंट्रल लेयर का मिडल लेयर का नाम है एरिकनॉइड मैटर, और पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर का. तो ये तीन लेयर सेम टू सेम ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्शन करते हैं. और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये दोनों लेयर के बीच में, मीन्स आउटर और मिडल लेयर के बीच में जो स्पेस होती है, और मिडल और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस में CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, इट फॉर्म्स फ्लड कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड. एक कुशन की तरह काम करता है, फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है. ये जो लिक्विड होता है CSF का, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, और ये स्पाइनल कॉर्ड को कुशन की तरह जो है सपोर्ट देता है, ताकि इंजरी से और मैकेनिकल इंजरी से स्पाइनल कॉर्ड की जो है प्रोटेक्शन हो सके. अब देखते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्ट्रक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के देखते हैं इसके कुछ पॉइंट. इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड. जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में बताया, ये रॉड की तरह लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. इसकी लेंथ और डायमेंशन देख लेते हैं. इसका लेंथ जो है ये है 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड. इसकी ब्रॉडनेस जो है वो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और लॉन्ग लेंथ इसकी जो है
42 से 45 सेंटीमीटर. ओके, डियर स्टूडेंट, ब्रॉडेस्ट एट द एंटीरियर एंड एंड tapers posterior into conus medullaris and further continues as a thread like phylum और फिलम टर्मिनल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो एंटीरियर एंड होता है यानी इसका सामने का जो एंड होता है वहाँ पर ये ब्रॉडेस्ट होता है यानी बहुत चौड़ा होता है. एंड टैपर्स पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियर साइड में यानी पिछली साइड में जो है ये टैपरिंग एंड दिखाता है यानी इसकी नोक निकली हुई होती है. ये वहाँ पर ब्रॉड नहीं होता, वहाँ पे बारीक होता है. ओके, इनटू कोनस मेडुलरिस नाम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये टैपर्स पोस्टीरियरली टैपरिंग एंड दिखाता है और एंटीरियर एंड में ये ब्रॉड एंड दिखाता है. ओके, फर्दर इट कंटिन्यूज एज अ थ्रेड लाइक, और वहाँ पर फिर और बारीक होने के बाद फिर ये एक थ्रेड की तरह जैसे कि फिल्म टर्मिनल जिसको बोलते हैं हम, उसकी तरह ये आगे फिर कंटिन्यू होता है. ओके, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड्स का कि स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर निकलती है नर्व्स की, जिसको क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्पाइनल नर्व्स. तो कितनी नर्व्स है? 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स की जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है. ओके डियर स्टूडेंट, दीज नर्व्स आर concentrated in the region of the cervical and the lumbar shows swelling. सर्वाइकल रीजन में वर्टेब्रल कॉलम के और लंबर रीजन में जहाँ पर स्वेलिंग दिख रही है वहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं यानी वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं. ओके, bunch of the nerves appears like a horse tails along the phylum terminals known as the cauda equina. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये जब बंच में यानी जब एक गुच्छे में दिखती है, बंच में दिखती है तो एक हॉर्स की टेल की तरह दिखती है यानी घोड़े की जो टेल होती है वैसी ये दिखती है अलॉन्ग द फिलम टर्मिनल. और फिलम टर्मिनल जो मैंने बताया आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, थ्रेड की तरह जो एंटीरियर एंड पे ये ब्रॉड रहता है, पोस्टीरियर एंड पे ये नोकीला हो जाता है और आगे जो है एक थ्रेड की तरह दिखता है जिसको हम फिलम टर्मिनल बोलते हैं. और जब ये उस हॉर्स टेल की तरह दिखता है तो वो वाली स्ट्रक्चर को कौडा इक्विना बोलते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप याद रख सकते हैं कौडा इक्विना यानी घोड़े की दुम की तरह दिखने वाला स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं TS यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसको ट्रांसवर्सली अगर कट किया जाए तो ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कैसा होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं. पहले, इट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शैलो ब्रॉडर एंटीरियर फिशर. डियर स्टूडेंट्स, डॉर्सो वेंट्रली यानी डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से ये फ्लैटेंड होता है यानी चपटा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर. एक डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर इसमें होती है यानी एक दरार टाइप इसमें होती है. उसकी वजह से ये जो है डॉर्सो और वेंट्रो साइड से जो है फ्लैटेंड होता है. और शैलो ब्रॉडर एंटीरियर फिशर इसमें होता है. पोस्टीरियर फिशर नैरो होता है और एंटीरियर फिशर जो है वो ब्रॉडर होता है, शैलो होता है, ऊपर की तरफ जो है प्रोजेक्टेड होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप याद रख सकते हैं डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये फ्लैटेंड दिखता है, चपटा दिखता है. ओके, द फिशर्स डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड. वो जो फिशर है, फिशर को आप एक तरह से दरार समझ सकते हैं, क्रैक समझ सकते हैं समझने के लिए. तो वो फिशर के कारण स्पाइनल कॉर्ड के दो पार्ट हो जाते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड. ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल इज प्रेजेंट इन द सेंटर. ये सब इस स्ट्रक्चर अभी आपको मैं बताऊँगा. सेंट्रल कैनाल इसमें होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको सेंट्रल कैनाल जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं. और ग्रे मैटर इज़ एच शेप्ड. इसमें दो तरह के मैटर होते हैं, दो तरह के मादे होते हैं, एक ग्रे कलर का, एक वाइट कलर का. जो ग्रे कलर का जो मैटर है वो एच शेप की तरह दिखता है, या फिर जो बटरफ्लाई आती है बटरफ्लाई की तरह दिखता है, या फिर आप याद रख सकते हैं ABCD में जो एच आता है एच शेप का वो दिखता है. ग्रे कलर का जो पार्ट है जिसको ग्रे मैटर बोलते हैं. इनर साइड में अंदर की तरफ वो रहता है, वाइल द आउटर साइड जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है. और वो वाइट साइड जो है पूरी आपको समझना पड़ेगा कि वो सब वाइट मैटर है, क्योंकि वो वाइट मैटर होने की वजह से वाइट अपीयर हो रहा है. ओके, TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं. द फिशर डिवाइड्स द ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न्स सच एज द पेयर्स ऑफ डॉर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न. या स्टूडेंट्स, वो जो फिशर है जिसने इसको डिवाइड किया था लेफ़्ट और राइट साइड में, उस फिशर ने ग्रे कलर को और ग्रे जो मैटर है, ग्रे कलर
का जो मैटर है उसको 6 हॉर्न्स में डिवाइड कर दिया है, और वो 6 हॉर्न्स जो है 3 पेयर में है, लेटरल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। ओके, द फिशर डिवाइड्स द वाइट मैटर इनटू 6 कॉलम और फिनिकुली सच एज, ये याद रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑफ, ग्रे मैटर को फिशर ने 6 पेयर्स में डिवाइड किया है और वाइट मैटर को 6 कॉलम में डिवाइड किया है। तो वो जो 6 कॉलम हैं वो कौन से हैं, वो भी पेयर में है। डॉर्सोफिनिकुली उसको बोलते हैं, लेट्रोफिनिकुली लेटरल साइड की, और वेंट्रल साइड की वेंट्रल फिनिकुली उसको बोलते हैं। यानी जो ग्रे मैटर है वो हॉर्न में डिवाइड हुआ है और वाइट मैटर जो है वो कॉलम में यानी फिनिकुलाई में डिवाइड हुआ है। तो वो अभी हम सब डायग्रामेटिकली यहाँ पर देख लेते हैं। ओके या स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सेंटर से। सेंटर में जो होल आपको सर्कुलर शेप का दिख रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। तो सेंटर में जो पार्ट है सेंट्रल कैनाल है, उसमें से स्पाइनल नर्व कंटिन्यू होकर जो है निकलती है। ओके डियर स्टूडेंट, सेंट्रल कैनाल के पास सराउंडिंग में आप देख सकते हैं एच शेप का ग्रे कलर का मैटर दिख रहा है, ग्रे कलर का, और बाकी जो बचा हुआ है उसके सराउंडिंग में जो भी दिख रहा है वो वाइट कलर का मैटर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल स्पाइनल नर्व है उसमें सेंटर में सेंट्रल कैनाल है, और फिर उसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड को हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना इसको देख सकते हैं कि एच शेप का जो है वो ग्रे कलर का मैटर है, ग्रे का मिक्सचर उसमें दिख रहा है। ओके, और बाकी जो है वो वाइट मैटर है, सराउंडिंग में जो दिख रहा है वो वाइट मैटर है। ओके डियर स्टूडेंट, अब ऊपर के पार्ट हम देख लेते हैं, पहले राइट साइड के देख लेते हैं। सेंट्रल कैनाल के आप सबसे ऊपर देखिए तो डॉर्सल कॉलम उसमें दिख रहा है। ओके, और डॉर्सल कॉलम के नीचे जो है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी ये जो पार्ट है एच शेप का जो ग्रे मैटर है वो कंटिन्यू हो रहा है डॉर्सल रूट में से। यानी उस पार्ट को आप समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि उसको डॉर्सल रूट बोलते हैं, जिसमें से स्पाइनल नर्व्स कंटिन्यू होती है, बाहर की तरफ जाती है। ओके, और फिर वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जो है कनेक्ट होती है, और उसके बाद जो है इधर से दूसरी साइड से नीचे की तरफ जो आ रहा है वो आपको देख सकते हैं वेंट्रल साइड का रूट है, तो इसलिए इसको वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व बोल सकते हैं। डॉर्सल साइड का डॉर्सल रूट, वेंट्रल साइड का वेंट्रल रूट, और उसमें से स्पाइनल नर्व्स कंटिन्यू होगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद वेंट्रल कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा है, वेंट्रल कॉलम बोलते हैं इसको। ओके, और सेंटर में सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रही है एंटीरियर मीडियन फिशर इसको बोलते हैं, यानी ये एक दरार की तरह स्ट्रक्चर जिसने फिशर ने लेफ़्ट और राइट साइड में इसको डिवाइड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही फिशर की मैं बात कर रहा था, ये एंटीरियर साइड का फिशर है और उधर पोस्टीरियर साइड का फिशर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये फिशर की वजह से लेफ़्ट और राइट साइड के पार्ट जो है बन जाते हैं। अब इसके आगे की तरफ हम देखते हैं, या फिर हम लेफ़्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस यहाँ पर दिख रहा है। ये सल्कस जो है ये एक वॉल होती है जो इस पार्ट को जो है ये सबसे ऊपर जो लेवल दिख रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, डॉर्सल हॉर्न यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे दिखेगा लेटरल साइड का लेटरल हॉर्न और वेंट्रल साइड का वेंट्रल हॉर्न। तो ये हॉर्न की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न। और उसके बाद ये ग्रे कमिशर, तो ये ग्रे मैटर तो आपको दिख ही रहा था। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जैसे हमने इधर वो डॉर्सल कॉलम देखा था लेटरल साइड का, यानी साइड के बाजू वाली जो कॉलम होते हैं उसको लेटरल कॉलम बोलते हैं, डॉर्सल साइड के डॉर्सल कॉलम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इतने स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा। क्या क्या हमने देखा यहाँ पर, सबसे पहले अगर देखिए स्टार्ट करें इसको तो सेंट्रल कैनाल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल सबसे बीच में, और एच शेप का फिर ग्रे मैटर बनाने का, जिसको ग्रे कमिशर जिसमें दिखाने का लेबल। उसके बाद डॉर्सल साइड में डॉर्सल कॉलम दिखाने का, लेटरल साइड में लेटरल कॉलम दिखाने का, और उसके बाद डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट दोनों साइड में दिखाना। और उसके बाद जो है स्पाइनल नर्व्स वेंट्रल कॉलम ये दिखाना चाहिए आपने। और उसके बाद जो है हॉर्न दिखाना चाहिए, एच शेप का जो है डॉर्सल साइड का ऊपर का डॉर्सल हॉर्न, और लेटरल साइड का बाजू का लेटरल हॉर्न, और नीचे का जो होता है उसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। और नीचे सबसे कमिशर दिखा देना चाहिए आपने, एंटीरियर मीडियन कमिशर जो बीच में दिख रही है एंटीरियर साइड में मीडियन कमिशर, वो कमिशर की वजह से ये लेफ़्ट और राइट साइड में स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होता है। तो डियर स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर में इतने पार्ट होते हैं। अगर हम इसका रफली स्टडी करें तो आपके समझ में आ जाना चाहिए
केस में सेंट्रल कैनाल होता है, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न होता है, लेटरल हॉर्न होता है, डॉर्सल कॉलम होता है, लेटरल कॉलम होता है, और साथ ही साथ इसके डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट होती है, जिसमें से नर्व कंटिन्यू होती है, और फिशर तो होता ही है, जिसके कारण इसके दो पार्ट हो जाते हैं। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और अगर पॉइंट देखें तो डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू फॉर्म द डॉर्सल रूट एंड देन कनेक्टेड टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो डॉर्सल हॉर्न है इट एक्सटेंड आउट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो डॉर्सल हॉर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये डॉर्सल हॉर्न जो है ये कंटिन्यू होता है और डॉर्सल रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे जाके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में कंटिन्यू होता है। ऐसे ही वेंट्रल साइड का वेंट्रल रूट में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ ब्लू कलर में जो पॉइंट दिख रहा है वही बता रहा है कि वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू फॉर्म द वेंट्रल रूट, वही उसका मीनिंग है। सॉरी डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं द एसोसिएशन और द इंटर न्यूरॉन लाई इनसाइड द ग्रे मैटर। इसका मीनिंग ये है कि जो एसोसिएशन है या फिर इंटर न्यूरॉन जो है, यानी आपस में जो न्यूरॉन इसमें मिलते हैं, दे लाई इनसाइड द ग्रे मैटर, वो ग्रे मैटर के अंदर रहते हैं, और विच रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स, जो सेंसरी नर्व से मैसेज और सिग्नल जो है रिसीव करते हैं, एंड एनालाइज इट, और उसको समझते हैं, एंड इंटरप्रेट इट, और इंटरप्रेट करने के बाद, समझने के बाद डायरेक्ट द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन, फिर रिस्पॉन्स देते हैं और मोटर न्यूरॉन को जो है एक्टिवेट करते हैं एंड लाइन टूवर्ड्स द वेंट्रल हॉर्न। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये डायग्रामेटिकली इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसमें जो दिख रहा है ग्रे मैटर, इस ग्रे मैटर के अंदर जाहिर सी बात है ये जो डॉर्सल साइड से जो स्पाइनल नर्व मैसेज लेके आ रही है वो ग्रे मैटर के पास जाएगा, ये डॉर्सल हॉर्न में, और वहाँ से इधर से दूसरा न्यूरॉन उसको कनेक्टेड रहेगा। दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से वहाँ कनेक्ट होते हैं, उस मैसेज को पहले वो रिसीव करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद समझने के बाद उस मैसेज को कंटिन्यू करते हैं और रिप्लाई देते हैं कि भाई अब बॉडी में इसका क्या एक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है डॉर्सल साइड से जो इसका मतलब ये है कि जो नर्व्स है वो सेंसरी नर्व्स इस मैसेज को लेकर आती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर इंटर न्यूरॉन जो है और एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन जो है वो इस मैसेज को समझते हैं और उसके बाद रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई देने के बाद मोटर न्यूरॉन इस रिप्लाई को टारगेट ऑर्गन तक ले जाती है और वहाँ पर ये एक्शन होता है। यह स्टूडेंट समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ हम कहीं चल रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभ गया है, if we got spicules inside our palm, or by mistake if our finger punctured by the needle, so what happens, the action that happens it called reflex action। जैसे कोई सुई थी, नीडल थी जो आपके फिंगर में जो है अचानक से चुभ गई है, पंक्चर हो गई है, इंजेक्ट अंदर घुस गई है, पेनिट्रेट हो गई है, तो डियर स्टूडेंट्स वो पेनिट्रेशन की वजह से हमें क्या होता है, सबसे पहले उसका फीलिंग होता है, दर्द का फीलिंग होता है, और उसके बाद हम जल्दी से अपनी फिंगर वहाँ से हटा लेते हैं। तो इतना जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन जितनी देर में हो रहा है उसको स्पाइनल नर्व ही कंट्रोल कर रहा है और उस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इसमें जो मैंने अभी आपको बताया हूँ ये सेंसरी नर्व उस मैसेज को लेकर आती है। सपोज़ आपको फिंगर में किसी जगह पर सुई जो है चुभ गई है, निडल जो है चुभ गई है, तो वो मैसेज जो है उस जगह से जहाँ पर वो निडल चुभी है आपकी बॉडी में, वहाँ से वो एक स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी नर्व्स जो है मैसेज लेकर आएगी कि भाई देखो यहाँ पर ये ऐसा ऐसा हो गया है, वहाँ पर निडल जो है इस पार्ट में अंदर चली गई है, तो वो अपने को एहसास कराएगी, सेंसरी नर्व्स दर्द का एहसास कराएगी, फिर वो मैसेज लेकर आएगी किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो वो न्यूरॉन जो है यहाँ पर ग्रे मैटर में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, फिर उस मैसेज को समझेंगे कि भाई उस एरिया में फिंगर में वहाँ पर नीडल अंदर चली गई है जिसके कारण वहाँ पर दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ये न्यूरॉन जो है ग्रे मैटर में एक दूसरे से एसोसिएट होकर एक दूसरे से उस मैसेज को समझेंगे, रिसीव करेंगे, समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, उनको एक्शन करना है, यानी रिप्लाई देना है उस एरिया में। आप क्या करने का भाई, तो वो क्या करते हैं, फिर एक मैसेज तैयार करते हैं, और मैसेज तैयार करने के बाद फिर मोटर न्यूरॉन यानी ऐसी
मोटर नर्व ऐसी नर्व जो एक्शन करवाती है। सेंसरी नर्व का क्या काम है? सेंसेशन करवाना, यानी दर्द का एहसास वगैरह करवाना। तो मोटर वो तो काम हो गया, अभी क्या है वहाँ एक्शन करवाना है। तो मोटर नर्व क्या करती है? मोटर नर्व ये जो न्यूरॉन है जिसने अभी मैसेज लाया था, यहाँ से ये मैसेज मोटर नर्व के थ्रू वहाँ जाता है कि अब इतनी देर में क्या करना है कि अब जहाँ से फिंगर पंक्चर हुई है या नीडल जहाँ पे चुभ गई है, पेनिट्रेट हो गई है, तो वहाँ से फिंगर को जल्दी से हटा लो, या जहाँ पर कांटा चुभा था उस जगह से पैर को जल्दी से उठा लो। तो कितना फास्ट ये एक्शन होता है। ये एक्शन इसी स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। तो ये लास्ट पॉइंट वही दिखा रहा था। ओके डियर स्टूडेंट, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं ट्रांसफर सेक्शन में। द लेटरल हॉर्न हैव अ न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसमें जो लेटरल हॉर्न है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में आपको लेटरल हॉर्न, इसके पास ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। एंड द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स इमर्ज आउट फ्रॉम द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। और इसमें से जो नर्व आती है वो वेंट्रल रूट में कंटिन्यू होती है, और वेंट्रल रूट से जो है वो कंटिन्यू होकर आगे जाती है। विथ वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ द माइलिनेटेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। वाइट मैटर जो है उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक है, लेकिन उस पर माइलिनेटेड शीट है, यानी एक माइलिन सेल से बनी हुई एक कवर है, शीट है। वो माइलिनेटेड शीट वाला ट्रैक इनके पास है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसके पास? वाइट मैटर के पास। द असेंडिंग ट्रैक conduct sensory impulse from the spinal cord to the brain, and the descending track conduct motor impulse from the brain to the lateral and the ventral funiculi of the spinal cord। देखिए डियर स्टूडेंट, वो जो मैं एग्जांपल अभी आपको बताया था नीडल वाली और कांटे वाली, स्पिक्यूल्स वाली, तो यही से इस तरह से वो कंट्रोल होता है। आगे हम देखेंगे इसका पूरा फंक्शन। तो असेंडिंग ट्रैक जो है, जो वाइट मैटर के पास है, उसका क्या काम है? इट कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स। वो सेंसरी जो नर्व्स जो मैसेज लेकर आई है, इम्पल्स लेकर आई है, उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। यानी स्पाइनल कॉर्ड में वो मैसेज आ गया, अब स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन को देगा, तो किसके थ्रू देगा? असेंडिंग ट्रैक के थ्रू देगा। ओके डियर स्टूडेंट, और उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक का क्या काम है? डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है? इट कंडक्ट्स अ मोटर इम्पल्स। अब जो एक्शन करवाना है उस एरिया में, टारगेट एरिया क्या था? फिंगर का, या कांटा चुभा तो पैर का जो हिस्सा था लास्ट वाला, नीचे वाला, वो टारगेट एरिया था। तो वहाँ पर अब टारगेट एरिया पे मोटर नर्व को कुछ एक्शन भी करवाना है। तो डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है? ब्रेन से लेटरल फेनिकुलाई जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, वहाँ पर ये मैसेज को ले जाता है और वहाँ पर एक्शन करवाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर थी जिसमें हमने देखा सेंटर में सेंट्रल कैनाल, फिर एच शेप का ग्रे मैटर, फिर उसके सराउंडिंग में जो भी है वो वाइट मैटर, ऊपर पोस्टीरियर फीचर, नीचे जो है एंटीरियर फीचर, जिसके कारण इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में फिर ऊपर की तरफ डॉर्सल रूट, नीचे की तरफ वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जो है वो डॉर्सल हॉर्न से कंटिन्यू होता है, वेंट्रल रूट जो है वेंट्रल हॉर्न से कंटिन्यू होता है, और इसमें लेटरल हॉर्न भी आपको दिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है। और उसके बाद ये जो तीन लेयर दिख रही है, ये तीन लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर सबसे आउटर लेयर, एरिकनॉइड मैटर उसके नीचे की यानी मिडिल लेयर, और सबसे नीचे की पाया मैटर। इस तरह से वो तीन लेयर यहाँ पर आपको दिख रही है, जो इस स्पाइनल कॉर्ड की ब्रेन की तरह जो है क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, उसकी सुरक्षा करती है। ओके, अब डियर स्टूडेंट फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मैंने पहले ही आपको समझा के दिया हूँ। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ द मेन सेंटर फॉर द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला हुआ आपको, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका ये मेन सेंटर है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत फास्ट होती है और जो आने वाले बड़े खतरे से अपनी बॉडी को बचाती है, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से लिज़ार्ड आपके बॉडी पर गिर गई, तो आप जो एक्टिविटी करते हैं, अचानक से जो रिप्लाई देते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आपके आँख में अचानक से कचरा चला गया, तो वो अचानक से आपकी आँखें पलकें बंद हो जाती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आप के पैर में कांटा चुभ गया, आप जिस तरह से पैर वहाँ से फ़ौरन उठाते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो हर वो एक्टिविटी जो आपको अचानक से आपके साथ हुई है,
और आपको बड़े ख़तरे से बचाने के लिए की जाती है स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स द नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट को नर्वस कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी ब्रेन से जोड़ता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसीलिए ये सेकंड पार्ट है। एक और इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ द सेंसरी एंड द मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सेंसरी मैसेज या आता है इसके थ्रू, और इसी थ्रू ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन उसको समझता है और फिर रिप्लाई देता है मोटर नर्व की ज़रिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। अब आई होप कि आपको स्पाइनल कॉर्ड और उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन समझ में आए हैं। टोटल मिलाकर अगर देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अचानक से होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करने के काम में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि घर में जो हम तवे पर रोटी बनाते हैं, अगर अचानक से हमें वो हमारा फिंगर गरम तवे पर चला जाए तो अचानक से हम हमारा फिंगर वहाँ से उठा लेते हैं, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन की एग्ज़ाम्पल है। ऐसे कई लाखों एग्ज़ाम्पल रोज़ हमारे साथ होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्ज़ाम्पल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक से आपके पास बॉल आ गया, तो जो भी आप अचानक से एक्टिविटी करते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से आपके आँख के पास से बॉल अगर गुजरा तो आप जो एक्टिविटी करते हैं, जो रिप्लाई देते हैं उसको, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे कई सारी एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन की आपको रोज़ आपकी डेली लाइफ में मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको स्पाइनल कॉर्ड और उसके फंक्शन समझे हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and the autonomous nervous system. So till then dear student, be happy, goodbye, thank you very much for watching this video, and do subscribe my channel Patel Science Academy if you have not. And dear student, please like, share and comment for the lecture. Thank you very much for watching this video.